we begin with today's session, and so for today's session we have Sunil Bhaiya uh, talking on two of the bhavnas out of our 16 bhavnas, and just everybody is aware, so I'm not introducing Janin today because I think most of the existing members have joined, but as such, we are on our journey with this group of professionals, accomplished professionals, and also talking about spiritual upliftment. More than 650 members focusing on application of Jainism, and in this series, we are going to talk about two other bhavnas from our Solar Karan Bhavna series. Solar Karan Bhavna, as we know, these are those auspicious wishes which, when contemplated, gives Tirthankar Namkaran. And I hope that all of us are contemplating these bhavnas in the interim 2 weeks before we have each session, and moving ourselves towards that ultimate goal. हमने दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, निरतिचार शील व्रत, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभीक्ष्ण संवेग, यथाशक्ति त्याग और यथाशक्ति तप की भावनाओं पे चर्चा कर ली है, और आज हम साधु समाधि और वैयावृत्तिकरण भावना पर सुनील जी से सुनेंगे। और मैं सुनील भैया के इंट्रोडक्शन के लिए नरेश भैया को आमंत्रित कर। जय जिनेन्द्र सभी को, and thank you Swati ji. It's a really a proud moment to introduce Sunil ji. So Sunil ji born and brought up in Jaipur, qualified as cost accountant, company secretary and alumni of IIM Ahmedabad, and is currently working as a CEO of Kenstar, a leading name in home appliances space headquartered in Gurgaon. Throughout his career span of almost more than 28 years, he has worked with leading names like Simco Birla, Videocon, Ultratech Cement, and Kenstar. He has been living in Gurgaon for now almost more than 11 years. Being born in family where core Jainism values are inherited, Sunil has always believed in basic principle of Jainism, and apart from daily Swadhyay, Mr. Jain also has interest in music and singing bhajans as well. Sunilji is connected to Jainism as a regular member and has also delivered his session on Sansar Bhavana during our Bara Bhavana series last year. He is married to Ritu Jain, who is homemaker. He has son Akash, software engineer, currently working in Vancouver, and daughter Akansha, who is working as designer in Delhi after completing her textile designing from NIFT Delhi. Just would like to add one more line. Since lockdown, myself and Sunil ji are doing regular Swadhyay almost every day, and it was a great journey. And over to you, Sunil ji. जय जिनेन्द्र आप सभी को। आज जैनिन के माध्यम से जो 16 कारण भावना की जो सीरीज चलाई जा रही है, उसमें आज हम लेंगे साधु समाधि भावना और वैयावृत्ति भावना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 16 कारण पूजा का जो स्थापना छंद है, वहीं से हम इसकी शुरुआत करते हैं। 16 कारण भाए तीर्थंकर जे भये, हर से इंद्र अपार मेरु पे ले गए, पूजा करी निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो, हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। 16 कारण भावनाओं की ये पूजन करके हमने अपने भाग्य को, अपने जीवन को बहुत धन्य महसूस किया। इसलिए आज हम 16 कारण भावनाओं को भक्ति भाव पूर्वक भा रहे हैं। 16 कारण भावनाओं का निरंतर चिंतन मनन तीनों लोकों में पूज्य तीर्थंकर नामकरण के आश्रव का कारण है।
एक या दो भावनाओं से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है, लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना जो है वो मैंडेटरी है, मतलब वो कंपलसरी है। उसके साथ कोई भी एक दो भावना से भी आप तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। हमने 16 कारण भावना की सीरीज में अभी तक जो भावनाएं पे डिस्कस हुआ है उसमें दर्शन विशुद्धि जो कमल अंकल ने शुरुआत की थी जहां से, उसके बाद विनय संपन्नता, निरतिचार शील व्रत, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण संवेग, और पिछले सत्र में गौरव जी ने हमें दो भावनाओं पे चर्चा की थी जिसमें शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप, ये दो भावनाओं पे उन्होंने चर्चा की थी। तो जब त्याग और तप जीवन में दृढ़ता से निभाए जाते हैं तो सहज ही साधुओं का जीवन समाधिमय हो जाता है। मनुष्य जीवन हमें जो मिला है वो संयम अंगीकार करने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन हमें भोगों के लिए नहीं मिला, बिकॉज मनुष्य गति एक ऐसी गति है, देव गति में या नरक गति में तो आप संयम या तप त्याग कर नहीं सकते, लेकिन मनुष्य गति एकमात्र गति है। त्रियंच गति में भी उपचार से आंशिक संयम बताया गया है, लेकिन मनुष्य गति में आप संयम अंगीकार कर सकते हैं, और मनुष्य गति ही एकमात्र गति है जहां से आप संयम और तप को त्याग करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि हमने तप भी किया और त्याग भी किया, लेकिन तप भी किया, तप त्याग भी किया, लेकिन इस जीवन का अंत, इस जीवन का जो हमारा अंत होगा, यदि वो समाधि पूर्वक हो तभी इस जीवन की सार्थकता है। अब मैं जो प्रेजेंटेशन इस पे बनाया है वो मैं एक बार प्रेजेंटेशन इस पे लगा देता हूं, फिर अपन उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। नरेश जी, प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हाँ जी, एकदम बढ़िया। ओके, परफेक्ट। तो सबसे पहला जो आता है वो साधु समाधि भावना के बारे में संक्षिप्त में चर्चा है कि साधु समाधि किसे बोलते हैं। यानी साधु और समाधि, ये दो शब्दों से साधु समाधि बना है और उसकी भावना हम भाएं। तो साधु यानी डिक्शनरी मीनिंग श्रेष्ठ, सज्जन, या फिर साधना में या आत्म साधना में रत जो साधु जन है उसे हम साधु बोलेंगे। और समाधि, समाधि यानी कषाय रहित परिणाम, संलेखना, इसे श्वेतांबर परंपरा में संथारा भी बोलते हैं। समता भाव से देह का परित्याग, पर से विरक्ति, पर से मौन, देह और संयोगों से विरक्ति, या फिर शांत परिणाम, इन्हें हम बोलेंगे समाधि। ये समाधि रूप परिणाम है। वास्तव में परिणाम शांत कैसे रहे उसका नाम समाधि है। अगर हमारे परिणाम शांतिमय है या समता पूर्वक है तो उसको हम समाधि बोलेंगे। और हर पल हम सब ये प्रयास करें कि हम हर पल समाधि में जिए, हर पल समता में जिए, हर पल शांति में जिए। यही व्यावहारिक व्याख्या है साधु समाधि की। अब हम साधु समाधि को डिफरेंट एंगल से साधु समाधि समझते हैं। हालांकि असलियत में तो जो मोक्ष मार्ग में जो रत साधु जन हैं उनका ही हम साधु समाधि, उनका परिणामों को स्थिर करने के लिए हम जो कर सकते हैं उसे ही साधु समाधि बोलेंगे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से या लौकिक दृष्टि से अगर बात करें तो लौकिक दृष्टि से जो भी गुणी जन हैं समाज में, परिवार में, बड़े बुजुर्ग जो भी गुणी जन हैं उनका हम सम्मान करें। मेरी भावना में तो ये जो छंद है बहुत अच्छा छंद है कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे। गुणी जनों को अगर हम देखते हैं तो भी हमारे हृदय में प्रेम उमड़ना चाहिए। बिकॉज जो गुणी जन है, मतलब मैं इसको ऐसा बोलूंगा कि अगर जीवन में अगर एक गुण का भी किसी में विकास होता है तो वो एक गुण कई गुणों को डेवलप कर लेता है। और इसी प्रकार से अगर एक बुराई कोई जीवन में आती है तो कई बुराइयों को साथ में लेके आती है। तो हमें जो भी गुणी जन हैं जिन्होंने गुणों का विकास किया है उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी संभाल करनी चाहिए, उनका आदर देना चाहिए, उनका समर्थन देना चाहिए। और
समाज में भी अगर कुछ गुणीजन हैं जो एक कुरीतियों को मिटाने का काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के गुणों का विकास कर रहे हैं, तो उनके अनुकूल हमें वातावरण निर्मित करना चाहिए। वी हैव टू मेक इंफ्रा एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, एंड उनको हर तरीके का हमने मोरल सपोर्ट भी देना चाहिए। तो ये लौकिक दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। पारलौकिक दृष्टि से अगर बात करें तो हम गृहस्थ है या श्रावक है, वो साधु समाधि भावना को हम कैसे भा सकते हैं? तो हम भा सकते हैं कि हमारे जो साधु जन हैं उनकी तपस्या में सहयोग करना। साधु जन की तपस्या में सहयोग करना मतलब हमारे नगर में, हमारे गांव में अगर कोई साधु जन है, कोई तपस्या कर रहे हैं या जहां पे भी साधु जन विराजमान है, उनकी तपस्या में हर प्रकार से हमें सहयोग करना चाहिए, तन मन धन से। अगर कोई तपस्वी है, कोई त्यागी है, इवन जो हमारे समाज में भी जो व्रती है, 10 लक्षण के व्रत करते हैं, 3 दिन के व्रत करते हैं, कोई 1 महीने के व्रत करते हैं, हमें किसी भी प्रकार के जो हमारे तपस्वी है, जो मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, उनकी हमें हर प्रकार से अनुमोदना करनी चाहिए, उनकी हम हर प्रकार से सराहना करनी चाहिए। इसी प्रकार से तपस्या में लीन मुनिराजों पर आए विघ्न का शमन करना, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साधु समाधि भावना का, कि हमारे मुनिराज जो अपनी आत्म साधना में लगे हुए हैं, जो स्व और पर कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, उनके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का विघ्न आता है, तो ये हमारा मौलिक नैतिक कर्तव्य है और हमारा सामाजिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य, कैसे भी बोलेंगे अपन इसको, हमारा कर्तव्य है कि उनका विघ्न का दूर करना। हमने शास्त्रों में भी कई चीजें पढ़ी हैं कि किस प्रकार से हमारे मुनिराजों पर आए हुए संकट पे या मुनिराजों पर आए हुए विघ्न का किस प्रकार से उनके संकट या विघ्न दूर किए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि कुलभूषण और देशभूषण जी जो मुनिराज थे, उनके ऊपर व्यंतर ने उपसर्ग किए। तो जो रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी जब वनवास में थे, तो उन्होंने वो जो व्यंतर ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, व्यंतर ने जो उनके ऊपर विघ्न किया, उस विघ्न को बहुत ही धैर्य पूर्वक उन्होंने लड़के और उस विघ्न से उन मुनिराज कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज को के ऊपर जो संकट आया था उसके ऊपर उन्होंने सहायता की। इसी प्रकार से संलेखना का अवसर आने पर उसे अच्छे से संपन्न करने में मदद करना। हम देखते हैं हमारे नगर में चातुर्मास होते हैं या इवन विदाउट चातुर्मास भी कई बार ऐसे अवसर बनते हैं, ऐसे चीजें आती है कि हमारे कोई मुनिराज आयु पूर्ण होने पे या रोगग्रस्त होने पे वो संलेखना धारण कर लेते हैं। और संलेखना धारण करने के वक्त हमें चाहिए एज ए इंडिविजुअल, एज ए समाज, हमें चाहिए कि उनका जो संलेखना जो लिया है, उन्होंने जो संलेखना समाधि ली है, उसको बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, निर्विघ्न संपन्न हो और उनके परिणाम जो है शांत बने रहे। इसी प्रकार से संलेखना में आने वाली बाधाओं को दूर करना। विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ सकती है। मुझे एक एग्जाम्पल ध्यान है कि इन द ईयर 2015 राजस्थान हाईकोर्ट ने संलेखना को के ऊपर रोक लगा दी थी। जैन समाज में, चाहे दिगंबर परंपरा में हो, चाहे श्वेतांबर परंपरा में जो संलेखना या संथारा किया जाता है, उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में आत्महत्या के इक्वल माना था। उस समय जो पूरा भारत का जैन समाज था, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, पूरे समाज सेवी संस्था, सब प्रकार की संस्थाओं ने उसके ऊपर अपने लौकिक, अपने तर्क देके और सुप्रीम कोर्ट में जब वो तर्क से और प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसके ऊपर बैन करा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक सामूहिक रूप से हमने उस बाधा को कैसे दूर किया। हमारे यहाँ तो संलेखना या समाधि कोई आत्महत्या नहीं है। संलेखना तो बेसिकली मृत्यु महोत्सव है। हम मृत्यु को महोत्सव कैसे बनाएं, उसे हम संलेखना बोलते हैं। तो हमें हर प्रकार की संलेखना में आने वाली बाधाओं को दूर करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। ये साधु समाधि भावना का ही पार्ट है। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम एज ए इंडिविजुअल, हम गृहस्थ, श्रावक अपने स्वयं के परिणाम कैसे सुधार सकते हैं और हम साधु के परिणाम सुधारने में कैसे मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है जो असली जो है वो कि साधु अपनी समाधि को कैसे बनाए रख सकते हैं। समाधि शब्द जब आता है तो हमको लगता है कि केवल जब अंत समय आता है या देह परित्याग का समय आता है, उसी समय आप समाधि लेंगे। बट वास्तविकता यह है कि समाधि पूर्वक जिएंगे तभी जाके आपका अंत समाधिमय होगा। 6 डाला में चलो उससे पहले करते हैं, जीवन के अंत तक अपनी तपस्या को, व्रत संयम को निर्बाध रूप से बनाए रखना। हमारे जो साधु जन हैं उन्हें जीवन के अंत तक जो उन्होंने तपस्या त्याग किया है जीवन भर, उस तपस्या को, व्रत संयम को
जीवन के अंतिम समय तक निर्बाध रूप से बनाए रखना, विपत्ति आने पर या जीवन के अंत समय में व्रत संयम छूट ना जाए, ऐसी सावधानी रखनी चाहिए। बिकॉज पूरे जीवन उन्होंने अपनी तपस्या की है और अंत समय में अगर वो व्रत संयम छूट जाते हैं तो ये सावधानी रखनी चाहिए। और अपने चित्त को समाधान देते रहना, मतलब हमेशा ये सोच रखना, ये भावना रखना और हृदय में समता धारण करना। समता धारण करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे साधु जन ही है कि किस प्रकार से उनमें समता रहती है। दौलत राम जी ने 6 डाला में जो छठी डाल है, उसमें हमारे मुनिराज का स्वरूप कैसा होता है, मुनिराज के स्वरूप का वर्णन किया है। और उन्होंने एक छंद में बताया कि हमारे मुनिराज समता कैसे धारण करते हैं। वो छंद है, अरिमित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असि प्रहारन, में सदा समता धरन। बहुत ही खूबसूरत छंद है जिसमें दौलत राम जी ने परस्पर विरोधी शब्दों को एक साथ रख के बताया है कि हमारे जो साधु जन हैं वो किस प्रकार से समता रखते हैं, हर परिस्थिति में समता रखते हैं। अरि मित्र, अरि मतलब शत्रु और मित्र तो है ही, तो शत्रु हो या मित्र हो दोनों उनके लिए समान है। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। शत्रु अगर कोई हो तो संतुष्ट कर दूं, उनके लिए शत्रु शत्रु नहीं है, उनके लिए मित्र मित्र नहीं है, वो तो उन्होंने तो समता धारण की है, सब उनके लिए समान है। तो अरि मित्र महल मसान, मतलब महल हो या शमशान हो, अगर उनको रात्रि बितानी है तो चाहे महल में बिताए चाहे शमशान में बिताए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। उनके लिए महल भी वही है तो शमशान भी वही है। महल में रह के वो आनंदित महसूस नहीं करते या शमशान में रह के अपने आप को ये महसूस नहीं करते मैं कहाँ आ गया, उनके लिए सब समान है। कांच निंदन, कांच मतलब कांच के टुकड़े, और कंचन कांच मतलब कंचन मीन्स गोल्ड सोना, और कांच मतलब कांच के टुकड़े। तो चाहे गोल्ड हो चाहे कांच के टुकड़े उनके लिए समान है, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। और निंदन थुतिकरण, निंदन मीन्स निंदा करना या थुतिकरण मतलब स्तुति करना, मतलब कोई हमारे मुनिराज की, हमारे साधु की कोई निंदा करे या स्तुति करे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये सोचे कि हम उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं तो प्रसन्न होंगे और वो बहुत हमको कुछ मंत्र देंगे, ये देंगे वो देंगे, नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो इन सबसे परे हैं। हम अगर लौकिक जीवन में भी देखते हैं तो ये वास्तविकता है कि निंदा हमें प्रभावित करे या नहीं करे, लेकिन प्रशंसा हमें प्रभावित नहीं करे ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे मुनिराज, हमारे साधुजन की साधु समाधि भावना ऐसी होती है कि उन्हें न निंदा प्रभावित करती है न प्रसन्न न उनको स्तुति। तो अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुतिकरण, अर्घावतावरण असि प्रहारन, में सदा समता धरण। अर्घावतरण मतलब उन्हें चाहे कोई अर्घ चढ़ाए, अर्घ समर्पित करे, चाहे कोई तलवार से प्रहार करे, असी मतलब तलवार से प्रहार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब समान है। यानी हर एक परिस्थिति में हमारे जो मुनिराज है, हमारे जो साधुजन हैं, उनमें इतना समता भाव होता है कि वो हमेशा अपने परिणामों को समतामय रखते हैं। तो ये साधु समाधि का जो असली रूप ये है। इसके बाद तो अभी हमने देखा कि लौकिक दृष्टि से हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, साधु स्वयं के लिए क्या कर सकते हैं, और साधु जो है हमारे दूसरे साधु की समाधि कैसे बनाए रख सकते हैं, दूसरे साधु की समाधि में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जब हमारे कोई संलेखना का अवसर आता है, समाधि होती है, तो हमारे जो निर्यापक आचार्य होते हैं या पास में जो आचार्य होते हैं वो उन साधु को जो समाधि में है उन्हें आकर इस प्रकार का उनके परिणामों को स्थिर करने में मदद करते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये देह जो है वो अविनाशी है, तुम चैतन्य आत्मा हो, तुम इस देह से भिन्न हो। ऐसा नहीं कि हमारे मुनि महाराज को ये चीज पता नहीं होती, वो तो जीवन भर उन्होंने अध्ययन किया है, लेकिन क्या होता है कि अंत समय में अपने परिणाम किसी भी वजह से, चाहे रोग की वजह से हो चाहे किसी भी वजह से हो, किसी असहता के उदय की वजह से भी हो सकता है कि उनके परिणाम खराब हो, लेकिन हमारे जो दूसरे साधु है वो अंत समय में उन्हें इस तरह से उनके परिणाम बनाए रखने में मदद करते हैं। शरीर की पीड़ा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, ये शरीर जो है वो तुम्हारा नहीं है, शरीर अलग है, तुम अलग हो।
शरीर से दृष्टि हटाओ और अपने आत्म स्वरूप में दृष्टि लाओ। मुझे प्रमाण सागर जी महाराज का जो मैंने प्रवचन सुना था, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख आया था इसके बारे में कि प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया कि एक बार एक नगर में मुनि महाराज का समाधि चल रहा था, उनका अंत समय करीब था और उन्होंने जीवन भर त्याग और तपस्या की थी और उन्होंने समाधि ले ली थी, लेकिन समाधि में उनके परिणाम वो स्थिर नहीं रख पाए और भूख और प्यास की वेदना वो सहन नहीं कर पाए। वो वेदना इतनी मुश्किल थी, किसी न किसी कर्म का उदय था उनका, वो वेदना इतनी डिफिकल्ट थी कि वो उसको सहन नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने लोगों से बोला कि मुझे पानी पिलाइए। समाज में लोगों ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन फिर जब वो अपनी मांग पे अड़े रहे तो उन्होंने ये भी बोला कि अगर मैं मुनि पद त्यागने के लिए तैयार हूं, लेकिन पास ही के नगर में आचार्य शांति सागर जी रहा करते थे। उस समय उनका चातुर्मास पास के नगर में चल रहा था, तो वहां का समाज आचार्य शांति सागर जी के पास गया और आचार्य शांति सागर जी से सारी घटना बताई। आचार्य शांति सागर जी ने उन मुनिराज के बारे में समाज को कहा कि मुनिराज को जाके मेरा संदेश दो कि हे मुनिराज, आपने जीवन भर इतनी त्याग और तपस्या की है, आचार्य शांति सागर आपकी तपस्या को नमन करते हैं और आपकी तपस्या हमेशा बनी रहे ऐसी भावना भाते हैं। जब जब प्रबुद्ध लोगों ने आके उनको ये बात बताई, महाराज के परिणाम जो है ऑटोमेटिक निर्मल हो गए। उनको लगा, अरे मैं क्या कर रहा हूं, आचार्य शांति सागर जी जब मेरी इतनी तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं और मैं अंत समय में अपने परिणाम बिगाड़ रहा हूं। अंत समय में उनके परिणाम बहुत वापस आकुल व्याकुल जो थे वो निराकुल हुए और उन्होंने देह का परित्याग बहुत ही शांतिपूर्वक किया। ये एक बहुत घटना है जो बताती है कि एक साधु किसी दूसरे साधु की समाधि बनाए रखने में कैसे सहयोग कर सकते हैं, कैसे मदद कर सकते हैं। उन्हें ये भी बताते हैं कि उन मुनिराजों का स्मरण करो जो भेद विज्ञान से परमात्मा बने, बिकॉज अंत समय में ये सब चीजें बताने से उनके परिणाम बहुत स्थिर रहते हैं और पुराण और महापुरुषों के दृष्टांत भी उनको सुनाते हैं जिससे कि वो अपने परिणाम स्थिर रख सकें। अभी प्रश्न ये है कि क्या हम ऐसी समाधि बनाए रख सकते हैं हमारे अपने आप की? क्या ये आसान है? ये ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा जब आप तत्व ज्ञान का अवलंबन लेंगे। तत्व ज्ञान का अवलंबन कोई बोले कि मैं अंत समय में ले लूंगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अंत समय में आपके परिणाम इतने आकुल व्याकुल होते हैं। तो अगर आपने जीवन भर तत्व ज्ञान का अवलंबन लिया है, जीवन भर अगर आपने वस्तु स्वरूप का विचार किया है, आप ये विचार करें कि वस्तु स्वरूप का विचार करें, प्रत्येक वस्तु का स्वतंत्र परिणामन है, ये सब आप विचार करेंगे, तत्व ज्ञान का अवलंबन लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन जो है समाधिमय होगा। आत्मा की अमरता का भान होना चाहिए, नित्यता का भान होना चाहिए कि ये आत्मा जो है वही अमर है, ये शरीर अविनाशी है, ये शरीर क्षण भंगुर है। भेद विज्ञान के बल पे स्व और पर, इसका भेद विज्ञान के बल पर वो अपना समाधि बनाए रख सकते हैं। शरीर और संयोगों की नश्वरता को मानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये जो धन दौलत गाड़ी बंगला परिवार, हमारा शरीर, इवन हमारा शरीर भी जो हमें मिला है ये नश्वर है, ये क्षण भंगुर है। जब हम ऐसा विचार करेंगे तो हमारे परिणाम हमें ऑटोमेटिकली सही रहेंगे। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इसका चिंतन करो। मैं कौन हूं? क्या मैं वो हूं जो दिख रहा हूं? क्या मैं हूं जिस पद पे हूं? क्या मैं वो हूं जो मैं ये जो पीछे और कमंडल मैंने धारण कर रखा है? नहीं। मैं कौन हूं? मैं तो शरीर मन वाणी मोह राग से भिन्न एक त्रैकालिक शुद्ध अनादि अनंत चैतन्य ज्ञानानंद स्वभावी ध्रुव तत्व हूं। और ये पीड़ा जो है वो मुझे नहीं है, क्योंकि मैं तो एक त्रैकालिक ध्रुव तत्व हूं। ये विचार जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके परिणाम स्थिर होंगे और वो रियल में साधु समाधि कहलाएगी। सारे संयोगों को कर्माधीन मानो, मतलब जो मेरे संयोग है, साता का उदय है या असाता का उदय है, कोई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये सब कर्मों से हो रहा है। अगर कर्मों की थ्योरी को आप मानेंगे, आप अपनाएंगे, तब जाके ऐसा होगा। और सभी संयोगों को पराया मानो। ये जो संयोग है, ये जो जितने प्रकार के मुझे संयोग मिले हैं नो कर्म के माध्यम से, ये सब पराये हैं, ये मेरे अपने नहीं है। ये सब कब होगा? ये सब अपने आत्मज्ञान के बल से होगा। क्या करें, मतलब इसमें डूज एंड डोंट्स है कि आपने अपने साधु समाधि परिणाम को बनाए रखने के लिए क्या करें, और नेक्स्ट आएगा क्या नहीं करें। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें? साधु समाधि भावना अपने अंदर जगाने के लिए एक बात बार बार दोहराएं
प्रमाण सागर जी महाराज का जो भावना योग है, प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं उससे, तो उसमें भी यही बताते हैं प्रमाण सागर जी महाराज कि आप अपनी भावना ऐसी भाएं कि मेरे अंदर की समाधि बनी रहे, मेरे अंदर की समता बनी रहे, मेरे चित्त में समाधान हो। ये जब भावना आप बार बार भाएंगे तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड इन चीजों को ग्रहण करेगा और आपका अंत समय पे अपने परिणाम आप बहुत अच्छी तरह से रख पाएंगे। कई लोग समझते हैं कि जो हमारे एक ये है ना, दिन रात मेरे स्वामी ये भावना में भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। कई लोग समझते हैं सर मेरा जब अंत समय आएगा तो मैं मेरे दोस्त को बोल दूंगा, मेरे बेटे को बोल दूंगा कि यार मुझे याद दिला देना कि उस समय मुझे पंच परमेष्टि का स्मरण रहे। अरे ऐसा नहीं होगा। ये जब जीवन भर अगर आप साधु समाधिमय जीवन बिताएंगे, अपने परिणामों को स्थिर रखेंगे, अपनी समता रखेंगे, तब जाके अंत समय आपका समाधिमय निकलेगा। तो देहांत के समय मैं तुमको न भूल जाऊं, मतलब पंच परमेष्टि का स्मरण रहे, और देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, मतलब निश्चय से बात करें तो स्वयं की अपनी आत्मा की शरण में रहें। ये एक इंपॉर्टेंट है जो हमें कंटिन्यूअसली, तो क्या करें जिससे हमारा जीवन समाधिमय होगा, तो हमें ये सारे डूज है जो हमें करने चाहिए। नेक्स्ट है कि क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनि महाराज की साधना को सुविधा युक्त बनाना। हमारा कई बार देखा जाता है आजकल, विशेष रूप से प्राय ये देखा जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे मुनि महाराज जो है वो बिल्कुल उनको कष्ट नहीं हो। अगर मुनि महाराज कोई नगर में है, अभी दिल्ली में है, सपोज 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो महाराज के लिए एसी का प्रबंध कर दो, महाराज एसी में रहने चाहिए जिससे उनको दिक्कत नहीं हो। या इसी तरह से अगर मान लीजिए 2 डिग्री टेम्परेचर है विंटर में दिल्ली में, तो महाराज के लिए हीटर लगा दो। या अगर मच्छर है तो महाराज के लिए गुड नाइट लिक्विडेटर लगा दो। ये करके हम अपने पाप कर्म बांध रहे हैं। बिकॉज महाराज के ऊपर, हमारे जो मुनि महाराज होते हैं, हमारे साधु होते हैं, उनके तो परिचय विजय नाम का उनका संयम जीवनचर्या का नाम है। उनको तो परिचय है, विजय करनी पड़ती है। ये 22 प्रकार के परिचय है जो कहे गए हैं, वो 22 प्रकार के परिचय क्या होता है कि जो महाराज को, जो हमारे साधु होते हैं, उनको कई प्रकार की यातनाएं भी सहनी पड़ती है, कई बार की प्रॉब्लम रहती है, जो नेचुरल जो प्राकृतिक यातनाएं रहती है, जैसे कि क्षुधा मतलब भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी यानी उष्ण और शीत, नग्नता, या दंश मंशक मतलब अगर मच्छर या डांस उनको खा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें ऐसा कोई प्रयास नहीं करना चाहिए कि हमारे मुनि महाराज की जो साधना है उसको हम सुविधा युक्त बनाएं। हाँ, इसमें एक पॉइंट यह है कि अगर उपसर्ग हो या महाराज के ऊपर या अपने साधु के ऊपर अगर उपसर्ग आते हैं तो जरूर हटाएं, वो हमारा कर्तव्य है। लेकिन परिचय विजय तो हमारे मुनिराज का संयम या जीवनचर्या का नाम है। लौकिक दृष्टि से बात करें तो, हम अपनी भी बात करें तो, हमारे शरीर को अगर हमें समाधिमय जीना है तो सुख सुविधा भोगी नहीं बनाना चाहिए, या कम से कम बनाना चाहिए। बिकॉज आज जो हम सुविधा भोग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारा अंत समय कैसा आएगा। हमने देखा लॉकडाउन में अच्छे से अच्छे लोगों को गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे थे, किस प्रकार से वो रहे थे, तो उनके परिणाम कैसे अच्छे रहेंगे। बिकॉज जीवन भर उन्होंने ऐसी सुख सुविधा भोगी है, तो वो नहीं रह सकते। तो हमें हमारा जो शरीर है उसको मिनिमम, कम से कम जितना हो सके उतना सुख सुविधा भोगी बनाना चाहिए। सेवा के नाम पे हमें आडंबर नहीं करना चाहिए। तो ये सारे डोंट्स है कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें हमारा जीवन समाधिमय बनाना है या हम किसी दूसरे का भी जीवन समाधिमय बनाना चाहते हैं, तो ये सारे डोंट्स है। इसके साथ ही हमारी जो साधु समाधि भावना है वो अभी समाप्त होती है, और साधु समाधि के बाद में हम दूसरी भावना पे चर्चा करेंगे, वैयावृत्ति भावना, वैयावृत्य भावना। वैयावृत्य भावना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भावना है। सबसे पहले हम उसका मतलब समझ लेते हैं कि साधु जनों की सेवा करना वैयावृत्य कहलाता है। वैयावृत्य के अगर मीनिंग भी हम समझे तो सेवा, करुणा, उपकार, वात्सल्य या सहयोग। मुझे कमल अंकल से 2-3 दिन पहले बात हो रही थी। कमल अंकल ने ही मुझे ये चीज बताया कि आप वैयावृत्य भावना में
जो 12 तपों में जो अंतरंग तप का एक पार्ट है वैयावृत्य तप, उसके जरूर उल्लेख करिए। मुझे इसका ध्यान नहीं था, तो मैंने ये सब ऐड किया उनके कहने पे। तो वैयावृत्य जो है 12 तप में अंतरंग तप का एक भेद है। गुणी जनों के ऊपर दुख आने पर उसके निवारणार्थ जो सेवा की जाती है वह वैयावृत्य नाम का अंतरंग तप है। और वैयावृत्य तप के मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये कि वैयावृत्य के जो पात्र होते हैं, मतलब किसकी सेवा करें, किसकी सेवा करें, तो किसकी सेवा करें, तो ये 10 प्रकार के हमारे साधुजन हैं जिनकी सेवा हमें करनी चाहिए। मतलब ये पात्र है सेवा के, जो जो रियल वैयावृत्ति है वो ये लोगों की है। तो इसमें आप आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, आप सबको पता है, मुझे भी ये पता था। सेक्स, ग्लान, ये सब मुझे पता नहीं था, लेकिन कमल अंकल से बातचीत में मुझे सब समझा। तो सेक्स मतलब हमारे जो मुनिराज है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आत्मा की, आत्मबल की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे सेक्स। ग्लान यानी जो रोग आदि से ग्रस्त मुनिराज है। गण यानी वृद्ध मुनि जो हो जाते हैं, जो वृद्धता में शिथिलता आ जाती है, उनको बोलेंगे हम मुनिराज, गण मुनिराज। कुल यानी एक ही आचार्य द्वारा दीक्षित जो साधु होते हैं, उनका जो अपना एक कुल बनता है उसको बोलते हैं कुल। और संघ मतलब गृहस्थ भी इसमें शामिल है, चाहे मे भी ब्रह्मचारी वगैरह जो महाराज जी के साथ रहते हैं। गृहस्थ, क्षुल्लक, ऐलक तथा मुनियों का समूह है, इसको बोलेंगे हम संघ। साधु हम सब समझते ही है। और मनोज्ञानाम यानी लोकप्रिय मुनि। अंकल ये मैंने कहीं से समझा है, आप इसको करेक्ट करिए बाद में कि ये क्या है। तो ये वैयावृत्य भावना है। इसके बाद जो आती है वो है कि हम सेवा, किसकी सेवा करें और कैसे सेवा करें। तो किसकी सेवा में हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है कि एक लौकिक दृष्टि से बात करें तो गुणवानों की सेवा करें, जो गुणी जन हैं उनकी सेवा करें, हमारे परिवार में, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें। बिकॉज सेवा का जो संस्कार है वो घर से ही चालू होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सेवा के संस्कार नहीं ले और उससे माने कि ये कोई साधु की जाके सेवा करेंगे तो वो केवल दिखावा होगा। तो सेवा के जो संस्कार है वो लौकिक दृष्टि से भी बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज आपका जो संस्कार है वहीं से चालू होता है। और दूसरे हैं मोक्ष मार्ग में रत साधुओं की वृत्ति या फिर वृत्ति श्रावकों की, जो वृत्ति श्रावक होते हैं उनकी, या मोक्ष मार्ग में रत साधुओं की हमें सेवा करनी चाहिए। तो इनकी सेवा कैसे करें हम? सेवा दोनों प्रकार से हो सकती है, शारीरिक सेवा भी करें या वचनों से सेवा करें। शारीरिक सेवा हम किसको बोलेंगे कि अगर मुनि महाराज कोई नगर से दूसरी जगह आए हैं तो वो थक जाते हैं, तो थक गए तो उनके हम पांव दबा सकते हैं, उनका हम किसी भी प्रकार की मालिश कर सकते हैं जिससे कि उनका थकान दूर हो और वो अपने आप को अपने आत्म कल्याण में लगा सके। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो शारीरिक सेवा से भी इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि वचनों से सेवा। मतलब कोई अगर मन से अस्वस्थ है, चाहे हमारे परिवार में हो, हमारे बुजुर्ग, या कोई गुणवान हो, या मोक्ष मार्ग में रत साधुजन हो, वो अगर मन से भी अस्वस्थ हो जाते हैं, कई बार शरीर से स्वस्थ रहते हैं लेकिन मन से अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उन्हें वचनों से सेवा करें। एक सेंटेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हूं ना। अगर ये सेंटेंस हमने बोला तो कितनी भी विपत्ति में, कोई व्याकुल परिस्थिति में होगा, लेकिन वो आदमी भी एक बार संभल जाता है। तो एक जो मैं हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कदाचित अगर हम शारीरिक सेवा नहीं भी कर पाए तो वचनों से सेवा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैयावृत्य भावना का। तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मुझे पता नहीं था, जब मैंने ये 16 कारण भावना सीरीज के बारे में जब मेरा डिसाइड हुआ और मैंने जब इसकी स्टडी की, तब पता लगा कि आप स्वयं की भी सेवा कर सकते हैं। और वास्तव में तो निश्चय से बात करेंगे तो स्वयं की सेवा ही सही सेवा है। बिकॉज पर की सेवा तो हमने अनंत बार की है, अनादि अनंत टाइम से हम हैं, तो पर की सेवा तो हमने कई बार की है। लेकिन स्वयं की सेवा कैसे करें? तो मोह, राग, द्वेष रूपी जो विकारी भाव है उनसे अपने आप को बचाएं। जो क्रोध, मान, माया, लोभ नाम के जो कषाय हैं उनसे अपने आप को बचाएं और अपने आप को आत्म साधना में लीन रखें। इसको बोलेंगे हम स्वयं की सेवा। और इसकी जो पूजा है 16 कारण भावना की, उसमें एक बहुत अच्छा छंद भी है। निश दिन वैया व्रत करैया, सोनी है चे भव नीर तरैया। निश दिन वैया व्रत करैया मतलब प्रतिदिन, निश दिन मतलब प्रतिदिन, एवरी टाइम, एवरी डे आपको वैया व्रत करना चाहिए।
अब प्रश्न ये है कि हमारे नगर में अगर कोई मुनिराज नहीं है, कोई साधुजन नहीं है, तो हम निश्चित किसकी करें? निश्चित वैयावृत्ति करें या किसकी करें? तो यहाँ पे है कि आप अपनी वैयावृत्ति करें, अपने आप को इस राग द्वेष रूपी जो भाव है, विकारी भाव है, उनसे अपने आप को बचाए रखे, वही सच में वैयावृत्ति है। तो सो निहचे भव नीर तरैया, तो जो अपने स्वयं की वैयावृत्ति करेगा या जो निष्दिन वैयावृत्ति करेगा, वो निश्चित ही भव सागर से पार होगा। वैयावृत्ति भावना को हम और डिटेल में समझते हैं कि वैयावृत्ति भावना किसको कहते हैं। तो साधु जनों की सेवा करना वैयावृत्ति कहलाती है। रत्न त्रय रूप गुणों से युक्त साधुओं पर दुख आ जाने पर निर्दोष विधि से मतलब अगर उनको हम औषधि भी दे रहे हैं, आहार दे रहे हैं, तो वो प्रासुक औषधि रहना चाहिए। निर्दोष विधि से उनका दुख दूर करें, उसको हम वैयावृत्ति बोलेंगे। धर्म ध्यान में बाधा न आए, इस बात का ध्यान रखना भी वैयावृत्ति है। श्रद्धा, विवेक और अपने सदाचरण के द्वारा अपना यानी स्वयं और पर का, सब जीवों का चरित्र निर्माण करना वास्तव में सच्ची सेवा या वैयावृत्ति है। आजीविका के लिए हिंसक तरीके अपनाकर कमाए गए धन से सेवा, दान, पुण्य करना सच्ची सेवा नहीं है। अगर हम उसको बोलेंगे कि वो वैयावृत्ति है, तो वो वैयावृत्ति नहीं है, वो सच्ची सेवा नहीं है। अभी ये है कि सेवा कैसे करें। तो अभी अपन ने पहले भी देखा था कि साधु या जो गुणी जन है, उनके पैर आदि दबाएं, जिससे कि वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। शरीर अगर रोगग्रस्त हो जाता है तो उसका उपचार करना या कराना। प्रतिकूल परिस्थिति में मन खराब अगर होता है तो मन खराब होकर सेवा करके उनके मन को स्वस्थ कर देना। असहजता या आकुलता अगर आती है किसी प्रकार की, तो उसे दूर करने का प्रयास करना, उसे दूर करने का उपाय करना। मुनि संघ को आहार एवं औषधि दान देना, ये सब जो है वैयावृत्ति का पार्ट है, वैयावृत्ति भावना का पार्ट है। और धर्म मार्ग से विचलित होते हुए को धर्म मार्ग में लाना। कई बार हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी अपने धर्म मार्ग से विचलित होते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस, उनको वापस धर्म मार्ग में लगाना, इसको भी हम इस प्रकार से भी हम सेवा कर सकते हैं। वैयावृत्ति से लाभ क्या होता है? तो वैयावृत्ति से लाभ यह है कि संसार में भौतिक सुखों में उलझे लोगों की सेवा से पुण्य का बंध होता है। भौतिक सुखों में उलझे मतलब हम सब जो लोग हैं जो भौतिक सुखों में उलझे हुए हैं, अगर उनकी सेवा करेंगे तो पुण्य का बंध है। वो मतलब खराब नहीं है, वो भी अच्छा है, पुण्य का बंध होगा उससे। लेकिन वास्तविक वैयावृत्ति क्या है कि भौतिक सुखों को छोड़कर आत्म सुख के लिए सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त जीवों की सेवा करने से पुण्य के साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी होती है। मोक्ष मार्ग में ऐसी सेवा को ही हम वैयावृत्ति बोलते हैं। तो जो हमारे मुनिराज है, जो साधुजन है, जो सम्यक दर्शन आदि गुणों से युक्त है, उनकी हम वैयावृत्ति करें तो वो एक वास्तव में सच्ची वैयावृत्ति कहलाएंगे। वैयावृत्ति से लाभ क्या है कि हमारा वैयावृत्ति मतलब देखिए, जो जब तक हमारे मन में दूसरे के दुख को हम अपना दुख नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरे का दुख दूर नहीं कर सकते या आप सच्ची सेवा नहीं कर सकते। और दूसरे का दुख दूर करके अगर हम अहंकार मानेंगे तो वो भी गलत है, बिकॉज एक्चुअल में तो दूसरे का दुख दूर नहीं कर रहे, आप अपना दुख दूर कर रहे हैं। वो कैसे? क्योंकि दूसरे का दुख होने से अगर आप आकुल व्याकुल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आप खुद दुखी है, राइट? तो अगर आप स्वयं दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि दूसरा दुखी है, उसको देख के आप दुखी है। तो दूसरे का दुख दूर होगा तो वास्तव में वो तो सुखी होगा ही, लेकिन आप अपने आप को भी सुखी करेंगे, तो अपने भाव भी निर्मल होते हैं और जिसकी सेवा की है उसके भी भाव उज्जवल होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमने समझना चाहिए। और जो 16 कारण भावना का जो कोर है, बेसिक है, वो तो है ही कि तीर्थंकर जैसा महान पद भी अगर आपने दर्शन विशुद्धि भावना भाई है और उसके साथ में अगर आप वैयावृत्ति भावना या कोई भी दूसरी भावना भाएंगे, तो तीर्थंकर जैसा महान पद भी इसके निमित्त से हमें मिल सकता है। अभी सेवा करने में या वैयावृत्ति करने में हमने क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेवा निस्वार्थ भाव से की जानी चाहिए। आजकल ये बहुत कम देखने को आता है कि हम मुनिराज की भी या साधुजन की भी सेवा करें तो निस्वार्थ भाव से करते हैं। कहीं ना कहीं कई लोगों में स्वार्थ की भावना रहती है कि मैं इन मुनि महाराज की अगर सेवा करूंगा तो मुझे महाराज कोई मंत्र बता देंगे, कोई रिद्धि सिद्धि बता देंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। वास्तव में सेवा तो यह है कि जो निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए।
जिसकी सेवा करें उसके गुणों के प्रति हमारे मन में अनुराग होना चाहिए, उसके गुण जो है उसके गुण हम ग्रहण कर पाए, ये सेवा में असली भाव होना चाहिए, और उनके गुणों के प्रति बहुमान होना चाहिए, अनुराग का भाव होना चाहिए। साधु जनों की सेवा बिना प्रदर्शन के करें, मतलब अननेसेसरली हम कई बार ऐसा भी देखते हैं, हम बुलाते हैं, मीडिया बुला लेते हैं, ये बुला लेते हैं, वीडियो कैमरा व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे उसको प्रचारित करते हैं सेवा करते हुए, ये नहीं, ये गलत है। हालांकि अगर कुछ लोग बोल सकते हैं कि इससे दूसरे लोग मोटिवेट होते हैं, बट ठीक है, ये पॉइंट है जिस पे हम डिबेट कर सकते हैं। और श्रद्धा भक्ति से करें सेवा, कैसे करें? बिना प्रदर्शन के और श्रद्धा भक्ति से करें, और साधु जनों का उपचार करके मन में अहंकार का भाव न लाएं। मन में अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने सेवा की और मेरी सेवा से मुनिराज स्वस्थ हो गए या गुणीजन स्वस्थ हो गए, नहीं। एक श्री कृष्ण भगवान के बारे में एक पॉइंट है कि एक बार श्री कृष्ण जो है वो एक मुनिराज के दर्शन करने गए, श्री कृष्ण, और मुनिराज अस्वस्थ थे। मुनिराज की अस्वस्थता देखते हुए उन्होंने पास में ही जो वैद्य थे उनको बुलाया, और वैद्य जी ने मुनिराज का उपचार करने के लिए जो औषधि बनाई, श्री कृष्ण ने नेक्स्ट डे उनके आहार में औषधि उनको दी और मुनिराज स्वस्थ हुए। इससे श्री कृष्ण को जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ, लेकिन जो वैद्यराज थे उनके मन में ये आया कि अरे मेरे औषधि देने से मुनिराज ठीक हुए हैं, तो उनके मन में जो अहंकार का भाव आया उसकी वजह से वो त्रियंच गति उनको मिली नेक्स्ट उसमें। तो ये जो अहंकार का भाव नहीं आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अच्छा करने जाते हैं और उससे हमारा खराब होता है। और वास्तव में तो हम जिसकी सेवा करें उसके जैसे बनने का भाव मन में आना चाहिए। यानी हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, तो गुणीजन की सेवा कर रहे हैं या साधुजन की सेवा कर रहे हैं, तो उनमें जो गुण है वो गुण ग्रहण का भाव हो। इसमें मेरी भावना में भी गुण ग्रहण का भाव रखें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जैसा बनने का हमारा भाव होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमने वैयावृत्य भावना की डिटेल में चर्चा की, और इसको जस्ट अगर मैं समराइज करूं, मतलब अपने दृष्टिकोण से समराइज करूं, तो दोनों में काफी कॉमन पॉइंट है, साधु समाधि भावना में और वैयावृत्य भावना में। साधु समाधि मतलब वास्तव में तो आचार्यों ने तो ये भी कहा है कि समाधि भावना भी वैयावृत्य भावना ही है, तो ये दोनों में काफी सिमिलरिटी है। लेकिन अगर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो है कि साधु समाधि में जो मुख्यता है वो समता भाव की है, परिणामों में समता भाव रहने चाहिए, और वैयावृत्य में सेवा भाव रहता है मुख्य, कि सेवा भाव रहना चाहिए। तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लौकिक दृष्टिकोण से बात करें कि हम जहाँ पे हैं हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारा जीवन साधु समाधि में बना सकते हैं, तो उसमें 3-4 पॉइंट जो मैं समराइज करता हूँ कि सबसे पहले हम हमारे परिणाम संभालें, हमेशा समता बनाए रखें, किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को आकुल व्याकुल नहीं करें और समता बनाए रखें। हम सेवा कर रहे हैं, वैयावृत्ति कर रहे हैं, तो उसमें दिखावा नहीं करें, प्रदर्शन नहीं करें। दूसरों के दुख में सहभागी बने, दूसरे के दुख को आप अपना समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और ये सब कब होगा? वास्तव में तो ये सब तब होगा जब आप तत्व अभ्यास करेंगे। और जैसा नरेश जी ने बताया था कि मैंने तो कोई पहले स्वाध्याय वगैरह कुछ नहीं किया था, लेकिन 2020 जो लॉकडाउन का टाइम आया था, तो आई थिंक सेकंड डे ऑफ द लॉकडाउन ही मैंने नरेश जी से बात की, और नरेश जी ने और हमने मिलकर डिसाइड किया कि अभी हमने जीवन जितना बिता दिया ठीक है, लेकिन अब हमारा जो आगे वाला आने वाला समय है इसको हम पूरा तत्व ज्ञान में लगाएं, जितना हो सके तत्व ज्ञान में लगाएं। और उसके बाद का दिन है और आज का दिन है, हम प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, तत्व चर्चा करते हैं। ये जो जैनिन के प्लेटफॉर्म ने जो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है हम सबको, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कमल अंकल, वाईके अंकल जैसे प्रबुद्ध बुद्धिमान और साधर्मी लोग हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओवर टू यू स्वाति जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भैया, अमेजिंग सेशन, आई वुड से अमेजिंग। मतलब मुझे तो आपकी विचारों को सुन के ही बहुत अच्छा लगा। मतलब while you touch on the concepts, but कुछ चीजें आपके इंटरप्रिटेशंस अमेजिंग, सो थैंक यू सो मच। और अब मैं ये ओपन करती हूँ फॉर क्वेश्चंस, तो किसी के भी कोई भी प्रश्न है तो प्लीज वी कैन डिस्कस दैट। Any questions from the audience?
मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन एक मैं छोटा सा विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सुनील जी ने जो भाषा का प्रयोग किया बहुत ही सरल थी, और हम जैसे जो साधारण लोग हैं उनको भी बहुत अच्छा समझ में आया, और उनकी जो मैनेजरियल बैकग्राउंड है वो पूरी झलक के आई इसमें। और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने विषय को बहुत सरल बना दिया, साथ साथ जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा किया कि मेरी तबीयत प्रसन्न हो गई। बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सुनील जी। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच विजय अंकल। हम भी ट्राई करेंगे कि हम जैनिन इस पूरे सेशन का टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर कर सके। सो विल ट्राई एंड रैप अप, क्योंकि सुनील भैया ने इतना अच्छे से किया है, तो आई थिंक विल बी एबल टू रैप अप इन प्रॉपर टाइम ऑफ 1 hour. तो या थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। कमल अंकल, अब आपके एनी कमेंट्स फ्रॉम यू? बहुत बहुत सुंदर और प्रभावशाली प्रस्तुति रही है, और जैसा कि विजय जी ने कहा, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया टाइम भी अपना, और जितना कुछ कहना था जो एसेंशियल था वो सब उन्होंने उसमें कह दिया। एक थोड़ा सा एक चर्चा चल रही है चैट में कि वैयावृत्ति क्या है और साधु समाधि क्या है। हालांकि बहुत अच्छी तरह से सुनील जी ने सब एक्सप्लेन किया है, फिर भी कुछ शंका है लोगों में, तो उसके लिए मैंने चैट बॉक्स में ही जो परिभाषाएं दी हैं मुनिश्री क्षमा सागर ने अपने जैन दर्शन पारिभाषिक कोश में, वो मैंने लिख दी हैं। तो उसमें ये साधु समाधि की परिभाषा है कि व्रतशील संपन्न साधु के तप में किसी कारण से विघ्न आने पर उसे दूर करना साधु समाधि कहलाता है। और वैयावृत्ति क्या है? गुणी जनों के ऊपर दुख आ पड़ने पर उसके निवारणार्थ जो सेवा शुश्रूषा की जाती है वह वैयावृत्ति है। तो यानी अंतर केवल ये है कि एक में हम बात कर रहे हैं विघ्न की, और दूसरे में बात कर रहे हैं दुख की। तो विघ्न तो पराश्रित है, एक्सटर्नल उसमें एक एलिमेंट होता है, और दुख हमारा अपना होता है, चाहे वो हमारे जैसे कि अक्सर जब विहार करके महाराज आते हैं सर्दी गर्मी में, तो उससे जो मन में उससे जो खिन्नता आ जाती है या थोड़ी क्लांति आ जाती है, थकावट आ जाती है, तो वैयावृत्ति में उनके पैर दबा के, उनके पैरों में तेल लगा के, या इस तरह से उनके दुख का निवारण किया जाता है। और यहाँ पर दूसरे में क्या है, साधु समाधि में, उसमें कोई एक्सटर्नल अगर डिस्टर्बेंस होता है, या चाहे उपसर्ग हो किसी का या कुछ और इस तरह की बाधाएं आ जाए, तो उसका निवारण है। वैसे उसमें दोनों में बहुत कॉमनैलिटी है, और ये सुनील जी ने अपनी प्रस्तुति में इस बात पर बल भी दिया है कि एक ही चीज़ के दो डायमेंशंस हैं। असल में देखा जाए तो सारी 16 जो भावनाएं हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और आप हर एक के अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें ये आता है कि इसके माध्यम से भी सब जगह पहुँचा जा सकता है। अंडरलाइंग कुछ कंडीशंस होती हैं कि सम्यक दर्शन होना चाहिए, भावों में विशुद्धि होनी चाहिए, ये सब वो अंडरलाइंग कंडीशंस हैं। फिर अगर वो हैं तो आप कहीं से भी शुरू करके कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें असल में विरोधाभास नहीं है, और सुनील जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है। यही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच अंकल। किसी और के कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है? नरेश भैया। तो ये बता दूं, हम लोग बेसिक से हैं, और सुनील जी की जो अच्छी बात है कि ग्राउंड जीरो से उन्होंने स्टार्ट किया। ऐसे हमारी बातचीत इससे दोस्ती हुई, और लेकिन उन्होंने जो ये वाले सेशन में और जो 12 भावना के सेशन में जो सिंसियरिटी से उन्होंने मेहनत करी है, मतलब सारे प्रवचन सुनना, 3 या 4 चीज़ें रेफर किया, कमल अंकल से बात की, मेरे साथ 2-3 बार बातचीत हुई, एंड जो फाइनल आउटकम निकल के आया उसके लिए तो काबिल तारीफ है। मतलब मानना पड़ेगा कि जैन धर्म को उन्होंने कितने अच्छे से महसूस भी किया है और हम लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो हम लोग मोस्टली प्रोफेशनल्स हैं इसके अंदर, तो हम सबके लिए यही है कि इट्स नॉट टू लेट, जो करना है वो हमें ही करना है,
जिस दिन से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, हम समझेंगे हमें जो चांस मिला है, जैसे सुनील जी ने बताया कि मनुष्य जन्म, जैन कुल और ये तत्व की वाणी सुनने का, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सारा मटेरियल अवेलेबल है, सिर्फ हमारी भावना होनी चाहिए। 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, क्योंकि 23, साढ़े 23, 24 घंटे तो हम पाप में ही लगाते हैं, जो शुभ या अशुभ, लेकिन जो शुद्ध या धर्म को समझने की चीज़ है। तो सुनील जी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे से किया, मेरे को तो बहुत खुशी हुई। थैंक यू। ओवर टू यू स्वाति जी। जब जागो तभी सवेरा। जी अंकल, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने कोई मौलिक शास्त्रों या मूल शास्त्रों को नहीं पढ़ा है अभी तक भी, लेकिन मैंने केवल जैसा आपने भी बताया था, प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन सुने हैं इसको लेके, और मल्टीपल टाइम सुने हैं, और क्षमा सागर जी महाराज के सुने हैं, संजीव गोधा जी के भी प्रवचन सुने हैं, बहुत अच्छे प्रवचन उनके भी इस पे, और इन तीनों को संकलन करके ही मैंने ये प्रस्तुति दी है। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है उनके शब्द हैं, मैंने उनको खाली आपके सामने बोला है। अभी समय आएगा आपका मौलिक शास्त्रों को पढ़ने का भी, पढ़ेंगे आप, उस रास्ते पर हैं। अंकल एक और चीज बोलूंगा मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाया क्या इष्टोपदेश, बट जेनिन के माध्यम से मुझे ग्रंथ का नाम पता पड़ा, एंड आई हैव माई सेल्फ कंप्लीटेड ये चीज। और जो पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में आया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही ग्रंथ का सार है और विशेषता और बाकी सब विस्तार है, मतलब इतना अच्छा लगा कि हम चाहे जहां से शुरू करें, बस चीज को ठीक से समझना है। अंकल वंस अगेन थैंक यू सो मच नरेश भैया। और सुनील भैया, आप कह रहे हैं कि आपका कुछ नहीं है, हमारे लिए तो आप ही का है। आपने तो महाराज जी श्री की वाणी को इतना अच्छे से कंसाइज करके और कुछ स्लाइड्स में प्रेजेंट कर दिया। मुझे तो ये लगता है कि ये जैनिन में जो ये इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स जो स्लाइड्स बना रहे हैं, उतनी अच्छी तो इस टॉपिक पे स्लाइड्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होंगी। तो डेफिनेटली हमें ये रेपोजिटरी बहुत अच्छे से प्रिजर्व भी करनी चाहिए फॉर टाइम्स टू कम। तो बट थैंक यू सो मच। और एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? कोई भी तरह की शंका? जय जिनेंद्र। कमेंट्स? हाँ जी, जय जिनेंद्र। वैसे तो सभी टॉपिक बहुत अच्छी तरह से कवर हो गए हैं, बचा खुचा जो है कमल अंकल ने और उसको विस्तार से बता दिया। जो मैं समझा था, मैं खाली समाधि अर्थात शांत भाव, परिणामों में शांति, समता भाव, निराकुल परिणाम, और समाधि अर्थात जीवन जीने की कला है। समाधि मरण नहीं है। समाधि अपना जीवन कैसे जिया जाए, ये जीवन जीने की कला है। और वैयावृत्ति जो है, जो जीवन जी रहा है उसकी सेवा करना, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य रखना, मुनिराजों के प्रति वात्सल्य रखना, जी है। अभी हम ये भी एक जो कर रहे हैं ना, ये चर्चा कर रहे हैं, ये भी एक तरह से वैयावृत्ति है। तो जीवन जीने की कला जो है वो तो एक साधु समाधि हो कि हमारा जीवन किस तरह से होना चाहिए, और वात्सल्य भाव सबके साथ में हो, किस तरह से किसी की सेवा करें, किसी के ऊपर उपसर्ग आए। अब जैसे एक शब्द आपने बोला, शायद वो हो सकता है गलती से, जब मुनिराज दुखी होते हैं, मुनिराज कभी भी दुखी नहीं होते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल, मैंने महसूस कर लिया था उसको बोलने के बाद, है ना। मुनिराज कभी भी दुखी नहीं होते। मुनिराजों के ऊपर कभी उपसर्ग आ जाते हैं, दुखी उनको देख के, उनको उपसर्ग आके हम दुखी होते हैं, और हमारे मन में करुणा का भाव आता है तो हम उनके उपसर्ग दूर करने जाते हैं। यह भी एक तरह की वैयावृत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल। एक जगह आपने बोला श्री कृष्ण भगवान, नहीं, वो मैंने श्री कृष्ण बाद में फिर सुधारा था, श्री कृष्ण भगवान शुरू में बोल दिया था मैंने। जी 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 भगवान जी नहीं थे जी उस समय। यस, हाँ, उस समय नहीं, आज भी नहीं है। हाँ। जैनिज्म में उनको भगवान नहीं मानता है। हाँ, हाँ, तो ये आपने मतलब मैं थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाह रहा हूँ। और आपने ओपनिंग बात जो आपने बोली थी, मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। आपने कहा कि दर्शन विशुद्धि भावना के साथ अगर एक दो भावना हो तो हमारी 16 कारण भावना पूरी पल जाती है। ऐसा नहीं है, ये तो क्रम है। जैसे 10 धर्म है वो पूरे भी पालन होने चाहिए, 16 कारण भावना भी है। मतलब दर्शन विशुद्धि तो सम्यक ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान से तो आप चौथी सीढ़ी तक जाओगे, उसके ऊपर नहीं जाओगे। और तीर्थंकर प्रवृत्ति चाहिए तो 14वें गुण स्थान तक जाना है। तो खाली दर्शन विशुद्धि से तो चल के और हम एक दो भावना भालेंगे तो 14वें गुण स्थान तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो ये 16 की 16 भावना जो है, हमें भावना जरूरी है। ये भावना चिंतन करना है, मनन करना है, रोज करना है। और आपने उसमें दौलत राम जी की जो लाइनें बोली है, उसी में बिल्कुल सब लिखा हुआ है। निषदिन वैया वृत्य करैया, सो निहचे भव तीर नीर तिरैया। निषदिन मतलब दिन रात, जो वैया वृत्ति करता है। तो दिन रात किसकी वैया वृत्ति करेंगे? दिन रात तो हम अपनी कर सकते हैं ना, दूसरों की नहीं कर सकते। तो बस इतना ही मैं ऐड करना चाहता था। बाकी आपने बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया, और संजीव गोधा जी के प्रवचन से आपका जो आज की चर्चा थी वो काफी
मेल खाती थी, और मैं भी उन्हें काफी सुनता हूँ, और बाकी बहुत सारे जो पंडित हैं उनको भी मैं सुनता हूँ, क्षमा सागर जी को भी सुनता हूँ, प्रमाण सागर जी को भी सुनता हूँ। और आपने जो अंश समेटे निश्चय ही, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने संकलित किया, और आपसे फिर अगर मुलाकात करने का मौका मिला या आपको फिर सुनने का मौका मिला तो हमें बड़ा सौभाग्य मिलेगा इस चीज के लिए। जय जिनेंद्र। मैं कुछ थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा, खास करके जो अभी राकेश जी ने कहा उसके संदर्भ में। इसमें एक बात ये बहुत आवश्यक है कि जहाँ पर हमें पुरातन आचार्यों के लिखे हुए ग्रंथों का प्रमाण मिलता है, वही प्रमाण माना जाता है, तो वहाँ फिर हम अपनी अटकलें या अपने इंटरप्रिटेशन लगाने का हमारे पास स्कोप नहीं होता है। तो ये कहना कि मुनि महाराज को कभी दुख नहीं होता, ये सही नहीं है। ये मुनि क्षमा सागर, जिनकी के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने एक बहुत स्टैंडर्ड कृपा करके हम लोगों के ऊपर शब्दकोश तैयार किया है। वो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि वैयावृत्ति का क्या कहते हैं। गुणी जनों के ऊपर दुख आ पड़ने पर उसके निवारणार्थ जो सेवा शुश्रूषा की जाती है वह वैयावृत्ति नाम का तप है। और कौन से हैं गुणी जन? अब इसमें आप देखिए, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु और मनोज्ञ। तो ये सब दुखी हो जाते हैं, ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं, उसमें दुख आ जाता है। मन में वो समता भाव अवश्य धारण किए हैं, लेकिन दुख की परिस्थिति तो है ना, तो उसको दूर करने का प्रयास करना वो वैयावृत्ति होता है। और ये इसके अनेक उल्लेख हैं, और यहाँ पर अब उसमें मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा, जिसमें ये लिखा है कि एक दर्शन विशुद्धि भावना अकेले भी और किसी के साथ कॉम्बिनेशन में पर्याप्त होती है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि जब पर्याकाष्ठा पे पहुंच जाती है, चौथे गुण स्थान की बात, तो वहां से तो सम्यक दर्शन प्रारंभ होता है, लेकिन वो सब सराग सम्यक दर्शन होता है, कषाय सहित सम्यक दर्शन होता है। तो धीरे 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 आप आगे बढ़ के जाके फिर जिन की स्थिति तक पहुंचते हैं 13वें और 14वें गुण स्थान में। तो वो उत्तरोत्तर उसमें विशुद्धि आती चली जाती है। तो इसीलिए दर्शन विशुद्धि है। तो दर्शन विशुद्धि चौथे गुण स्थान में ही उसकी अंतिम परिणति हो जाती है, ऐसा नहीं है। पर यह भी कहा गया है कि चौथे गुण स्थान में भी बंद हो जाता है तीर्थंकर प्रकृति का, और उसके उदाहरण भी हैं, जैसे कि श्रेणिक का उदाहरण है, सम्राट श्रेणिक का उदाहरण है। तो इसमें हमें देखना चाहिए कि क्या हमारे पास यानी हमें जिनवाणी तो उपलब्ध नहीं है। हमें जिनवाणी जो उपलब्ध है वो इन पुरातन आचार्य हैं, इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन्हीं के माध्यम से हमारे पास जिनवाणी आती है। तो उसमें जो लिखा है उसको हमें यथावत स्वीकार करना चाहिए, और वहाँ पर हमारे अपने जो हमारे तर्क वितर्क हैं उनको हमें गौण कर देना चाहिए। मुख्यतः उसमें जो प्रमाण है उसकी होनी चाहिए। आपने जो बात कही कमल जी, वो ही मैंने भी कही थी। आपने भी कहा मुनिराजों को दुख आते हैं, मुनिराजों को दुख आते हैं, वो हमें नहीं लगता है। मुनिराजों तो आपने खुद ही ने कह दिया कि समता भाव रखते हैं, वो तो जो समता भाव रखता है उसको तो दुख आता ही नहीं है। वही बात आपने कही, मैंने भी वही बात कही। जो परिभाषा आपने कही निरंतर, वो तो समता भाव ही रखेंगे। अगर मुनिराज अगर समता भाव नहीं होता, वो तो अगर निरंतर ही समता भाव रखते हैं, अगर वो 28 मूल गुण के धारी हैं, वैसे ये डिबेट नहीं करना चाहिए। 28 मूल गुण के धारी तो कभी दुखी हो ही नहीं सकते। नहीं, ये निश्चित बात है, और ये शास्त्र आगमन से देखिए, मैं समता भाव है उसमें। 28 मूल गुण में समता भाव तो है ही ना। नहीं, 28 मूल गुण में समता भाव नहीं है, और 28 मूल गुण के धारण करने के बाद भी भावलिंगी होना आवश्यक नहीं है। हाँ, भावलिंगी होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो समता भाव नहीं है ना। समता भाव तो मुनिराज का पहला गहना है एक तरह से। सुन लीजिए, मैं इसमें कितने भी आपको प्रमाण दे सकता हूँ कि जो द्रव्यलिंगी होते हैं उनके लिए भी 28 मूल गुणों का पालन करना आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है। तो फिर तो द्रव्यलिंगी में समता भाव कहाँ है? द्रव्यलिंगी साधु में समता भाव तो है, 28 मूल गुण के धारी है, तो ना उसमें 28 मूल गुणों अगर उनके हो गए, 28 मूल गुणों में समता भाव नहीं है।
5 अनुव्रत हो गए, देश व्रत हो गए, शिक्षा व्रत हो गए, उनके सब हो समता गए। भाव नहीं आया। समता भाव तो इन सबों में, अगर समता भाव के बिना तो किसी व्रत का पालन ही नहीं होगा। समता भाव निरंतर करना ये द्रव्य लिंग में संभव नहीं है, वो आगे जाकर होता है, भावलिंग में होता है ना। तो तमाम उदाहरण हैं इसके कि जिसमें कि समता से च्युत हो गए हैं, लेकिन मुनि हैं, और फिर उन्हें तभी उनकी प्रतिस्थापना की जाती है ना। बिल्कुल ठीक है। जो फिर से उन्हें रीइंस्टेट किया जाता है, जैसे कि कोई सब संलेखना लेते समय भी समता से हट गए तो उसमें उनको फिर वहां पर रीइंस्टेट किया है ना आचार्य शांति। बिल्कुल 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 ठीक बात है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे मुनि कभी समता से च्युत नहीं होते, होता है, हो जाता नहीं, है। समता से च्युत होते तो मुनि धर्म भंग हो जाता है, वापस से उनको भंग करना नहीं हो पड़ता जाता है। धर्म भंग नहीं हो जाता। धर्म भंग नहीं हो जाता उससे, वो उसमें प्रतिस्थापना उनकी संभव है। उस बात का प्रतिस्थापना हुई मतलब भंग हुआ, तभी प्रथा जो स्थापना से अनाचार जो स्थापना से देखिए छेद, जब मुनि धर्म का मुनि पद का छेद किया जाता है तो उसके लिए कुछ अनाचार आवश्यक है। अनाचार होते हैं तो प्रायश्चित हो जाता है, खैर वो तो बराबर नहीं, अनाचार का प्रायश्चित नहीं है, अनाचार में तो फिर छेद किया जाएगा, फिर तो उनकी दीक्षा भी भंग हो जाती है उसमें। खैर बहरहाल इसमें बहस का मतलब नहीं है, लेकिन आपको अगर संदर्भ चाहिए अलग से, मैं आपको इसकी कितने भी संदर्भ दे सकता हूँ जिसमें ये है कि एक दो भावनाओं से भी आप तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है। एनी नंबर ऑफ रेफरेंसेस कि 16 के 16 आवश्यक हैं, यद्यपि एक में पर भी मैंने तो कहीं ऐसा सुनने पढ़ने में नहीं आया। खैर मैं बहुत ज्यादा अध्ययन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं है कि एक या दो भावना से एनी नंबर से हो जाता है। तो 10 धर्म के अलावा एक धर्म से भी शायद हम 10 धर्मों का पालन कर सकते हैं। अब खैर मैं बहस नहीं करना चाहता। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव्स जसपाल अंकल और राकेश भैया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और एक प्रश्न आया है ये नरेश भैया ने सुनील भैया के लिए कि यंग प्रोफेशनल्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज एक ही है कि समय का हम इंतजार नहीं करें कि अभी तो हम यंग है, अभी तो हमारे केवल काम करने का समय है। वो समय कोई नहीं जानता नेक्स्ट पल में क्या होगा। तो आप आज से ही वो शुरुआत करें। जब शुरुआत करें तभी अच्छा है, जब जागे तब सवेरा। तो आप भले ही आप 10 दिन में 10 मिनट लगाएं, लेकिन अपना स्वाध्याय जरूर करें, बिकॉज स्वाध्याय जो है आपका कई गुणों का विकास करेगा। एक जो गुण आप में डेवलप होगा वो कई गुणों का विकास होगा। तो 10 मिनट प्रतिदिन कम से कम आप स्वाध्याय में लगाएं। कोई भी ग्रंथ ले लें, शुरू से अंत तक उस ग्रंथ को जरूर पढ़ें। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई थिंक यही जैनिन का भी उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे करके आगे बढ़े। बट नाउ इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम एंड कीपिंग टाइम इन चेक, आई थिंक वी वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन, क्योंकि हम काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि हम 1 घंटे के करीब में कर लें कंक्लूड। तो आज बिकॉज सुनील भैया ने इतने अच्छे से टाइम मैनेजमेंट किया, तो आई थिंक वी हैड अ गुड राउंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। किसी के कोई लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी वुड लाइक टू रैप अप। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आवत अंकल, राकेश जी, आप लोग भी सेशन दीजिए। तो वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू, क्योंकि मतलब मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है कि लोग आके सुनील भैया के क्या थॉट्स थे, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, इट वाज जस्ट अमेजिंग टू हियर दैट। तो फिर मतलब, और हम इस क्लोज ग्रुप में दूसरों के विचारों को सुनते हैं, वो हमें कहीं ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं देन पीपल whom we don't know so well and so personally। तो इसलिए मतलब इसका एक अलग ही महत्व है कि मैं काफी दिनों तक याद करूंगी कि सुनील भैया ने ऐसा कहा था। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब बोलें, और जो भी स्पीकर होता है उसके विचार सुनने का सबको मौका भी मिलता है। तो कियावत अंकल, वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू कि आप सेशन कब ले सकते हैं, और राकेश जी भी, आप भी।
मैं सेशन लूंगा लेकिन समय बाद में दूंगा। श्योर श्योर श्योर, आप सोच के समय बताइए। और राकेश भैया आपका? जब भी सबको कन्वीनियंट हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो मैं थोड़ा सा रेगुलर स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो इतना कोई बड़ा समस्या नहीं होती है। थोड़ा सा 2-4 दिन की प्रिपरेशन होगी, फिर कमल जी हैं, वाई के अंकल हैं, उस तरह से उन लोगों से चर्चा करके ये सेशन तो ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो इसीलिए हमें कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि कमल अंकल, वाई के अंकल इवन करेक्ट और गाइड during the course of the session, so anybody means can take, and Rakesh bhaiya, we'll be privileged, और नरेश भैया will be reaching out to you कि कब सेशन करना है। ना बिल्कुल। एक्चुअली हमारे जेएनयू ग्रुप की सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ करेक्ट करने के लिए बहुत सारे विद्वान हैं हमारे साथ में। तो आप कहीं गलती भी करते हो तो उसको करेक्शन फटाफट हो जाता है, तो हमारा कंसेप्ट जो एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। और कमल जी, आपसे मैं उत्तम क्षमा, आपसे मैंने थोड़ा सा चर्चा को एक लिमिट के बाद बढ़ा दिया, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। मेरा कोई ऐसा विचार नहीं था, मैंने अपनी समझ से चर्चा करी और इसमें कहीं कोई वाद विवाद वाला विषय नहीं था, तो कृपया उसको अन्यथा मत लीजिएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसमें एक ये सजेशन देना चाह रहा था, बल्कि मेरा ही पहले सजेशन था कि अगले इसमें सत्र में हम चारों भक्तियाँ ले लें, लेकिन फिर मैंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि ये न्याय नहीं हो पाएगा उसके साथ। तो दो करके अगर हम लें तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। तो जी हाँ जी अंकल, इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि अगर हमें 1 घंटे में रैप अप करना है, तो क्या इवन एक जैसे एक भावना होती है, तो अब वो चर्चा जैसे अभी भी 1 घंटा 10 मिनट चल गया, तो वो 2 भावना होती है, फिर उन पे चर्चा होती रह जाती है। अगर एक होती है, अब मुझे भक्ति का आइडिया नहीं है कि भक्ति बिकॉज दे विल बी अ लिटिल सिमिलर, तो हम 2 भी कर सकते हैं साथ में, तो जैसा आप सजेस्ट करें। 2 तो हम कर सकते हैं, दो मैनेज हो जाता है। अब आज इतना अच्छी तरह से हो गया, काफी डिस्कशन भी हो गया, तो 2 करके हो जाएगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है कि आप एक भावना के ऊपर आप 7 दिन तक भी चर्चा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन वैसे कंफर्टेबली 2 भावनाएं आराम से हम चर्चा कर सकते हैं एक सेशन में। तो इससे इतना संशोधन आप कर लें, जो कार्यक्रम आपने निर्गत किया है उसमें इतना संशोधन कर लें कि अगले सेशन में हम पहली 2 भावनाएं हैं वो लेंगे, भक्ति और आचार्य भक्ति। डन, ठीक है अंकल। तो किसी का कोई और एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस? तो ठीक है, हम अभी रैप अप कर सकते हैं। आज हमारा 1 घंटा 10 मिनट चला है, 71 मिनट्स इन टोटल।